truly honored to welcome you all this alumni interaction program organized under the Alumni Association of our college by the Department of Philology. Today's program is especially designed to bridge the gap between academic learning and real-life career path through the inspiring journey of our alumni guests. First of all, I would like to introduce the guest lecturer, what is alumni program. Alumni are the living example of what a student can achieve beyond the classroom. They not only represent the success of the institution but also serve as a guidance light for current students. To this, we are fortunate to have such accomplished alumni from the department who have a unique career path after completing their PhD. To begin today's program, we shall start with the felicitation ceremony. I would like to felicitate the head of the Philology department who has always been a source of motivation, discipline and academic excellence for both the student and faculty. I requested to Rumana ma'am to felicitate our respected faculty. Thank you sir for your kind. Now, we would like to felicitate our respected Rumana ma'am, whose experience and dedication have shaped the academic foundation of today's students. I requested to Kuba ma'am to felicitate our respected senior teacher. Now comes the most awaited part, the felicitation of our esteemed alumni. Felicitation of Mrs. Aisha Muhammad Ismail, our principal first Muhammad Ismail. Our first alumni is Mrs. Aisha Muhammad Ismail, who completed her PhD in the year 2022. Today, she is a successful entrepreneur running her own beauty parlor, proving that science graduates can explore diverse and creative career options. I requested Bishop Gupta ma'am to felicitate this moving alumni. Welcome ma'am, we are proud of your journey. Thank you. Our second alumni guest is Mrs. Dusera, who completed her PhD in the year 2020 and is currently working in a pathology laboratory, contributing directly to the healthcare sector. I requested to Nida ma'am to facilitate this lecture. यहाँ पर मैं शेर बोलना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसको सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। Next, I request our respected head of the zoology department to address the gathering. Thank you, sir. I request Rumana ma'am to address the gathering. Now, I would like to call Shabutta ma'am to felicitate Afifa Ibrahim. Thank you, sir. Next, I request our respected head of the zoology department to address the gathering. Thank you, sir, for your cooperation. Respected dignitaries on the dais, actually ये हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, आज हमारे केस बन रहा है. We, the Department of Zoology, as well as from the students, we heartily welcome you all. Respected dignitaries on the dais and dear students, Assalamu alaikum. First of all my wishes, great wishes to both three of them, because they are actually working in their specific field and they will interact you one by one. This program is actually intended to organize, to create awareness about your careers, and as you better know that the Government of India has launched NEP 2020 in July 2020, and in this new education policy, you better know that there are certain
areas where the students can develop their skills, and apart from their academic career as well as their curriculum, the students can basically learn various types of skills and can start their own businesses. So with these aims, we, Department of Zoology, in association with the Alumni Association of the college, organized this activity, and we have called three actually resource persons today. Two basically belongs to beauty parlor. They have actually started their own beauty parlor, and one actually working in the pathology lab from since last I think 5 years, right? 6 years, very nice. So she is actually working in the pathology lab in Malegaon, and she has completed their MSc from Chandor College. So lastly, I am very much thankful to all of them that they have actually ready to come over here and being a part of this program. Thank you all. Now I invite our respected senior secretary, Ivana ma'am, to share a few words with us. Respected zoology department, dear faculty, I am marine based forensic student, dear students, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमने हमारे एक से स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी की अलुमनी एसोसिएशन ऑफ जोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से और बनाने का जो खास मकसद था आपको बताना है, आपको इंस्पिरेशन मिलने के लिए हमें बताया है कि आप उनसे कुछ सीखें कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो उसके बाद भी आपको अपनी तालीम मुसलसल नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ बन सकते हो। और आप देख रहे हैं कि आगे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, खासतौर से आयशा इस्माइल और ये दोनों बच्चियाँ जो है वो बीएससी के बाद ये अपना ऑर्डर भी चलाती है, साथ में बीएससी भी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चियाँ सेल्फ सफिशिएंट थी, ये अपने माँ बाप पर बोलते हैं लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ है ये बच्चियाँ जो है वो उनके माँ बाप ने इनको ना सिर्फ ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करने के बाद ये बच्चियाँ खुद शौर आ गया कि हमें हम कुछ और भी कर सकती हैं, और साथ ही साथ बच्चियाँ कर भी रही है और तालीम भी हासिल कर रही है। इसी तरीके से मुस्कुरा जो है वो ये भी आप लोगों के इंस्पिरेशन है। शी बिलोंग टू अ सिंगल पेरेंट, उनकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से इसको ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करवाया, उसके बाद एमएससी किया, उसके बाद साथ ही साथ जो काम करती रही है। तो उन बच्चियों को इन्वाइट करने का एक ही मकसद था कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ बैरियर नहीं हो सकती है, या तो घर के हालात या तो माशी कंडीशन, माशी हालात या समाजिक दबाव, कोई भी चीज़ बैरियर नहीं हो सकती। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, कुछ बन सकती है, अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकती है और मिसाल है। और हम चाहेंगे कि आप भी जो इनसे कुछ सीखें और कोशिश करें। हम चाहते हैं कि हम अगले साल आप में से भी कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे और हम इसी तरीके से प्राउडली आने वाले बच्चों को बता सकें कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और आज कुछ बन चुके हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का यही मकसद था। इसके साथ में Thank you, ma'am, for your valuable guidance. Now, we move towards the academic highlight of today's program. I would like to invite Ms. Aisha Muhammad Ismail to deliver a career guidance where she will share her journey, challenges, and opportunities beyond conventional career paths. Ma'am, let's take it on. मैंने यहाँ पर 2024 में अपना एससी कंप्लीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला मैं एससी कंप्लीट करी सेंट्रल आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज से। और यहाँ पर सबसे पहले तो जात का जिसने मुझे शुक्रिया जिसने उन्हें मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया और आज आप लोगों
इंडिपेंडेंट बात कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर कायनात का जिन्होंने आज मुझे इस बात को बताया। पहले अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊँ तो हर एक का सफ़र जो होता है बहुत ही मुश्किल तरीके से शुरू होता है और हमें अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। हम अकेले ही जब सफ़र करते हैं, अकेले सफ़र करो और उसके बाद जो है जब कामयाबी हमें मिलती है तो हमारे पीछे काफिला चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले मैंने अपना स्टार्ट किया था करियर 2021 में पार्लर के, उसमें मैंने कदम रखा था पार्लर की दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से भी क्लासेस ली और उसके बाद जो है बाहर भी गई सीखने के लिए, नासिक हो गया, खिलका हो गया और दूसरी सिटीज़ में भी गई सीखने के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक ही बात समझ में आई कि आज के दौर में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ख्यालात को उठा सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि लड़कियां आज किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकती। और मैंने अपना मतलब पूरा कंप्लीट किया, कोर्सेज वगैरह कंप्लीट किया। इसके बाद एक बार ट्रैवलिंग का मुझको बहुत ज़्यादा मजा आया यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसा था कि मेरी शिफ्ट अलग होती थी, मेरी सिस्टर की शिफ्ट अलग होती थी, फॉरेन का ड्यूरेशन जो था वो अलग होता था, उनका टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग था। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का हमें बहुत ज़्यादा मजा आया, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे फादर जो है, लाना ले जाना ए टू जेड काम जो है वो हर एक चीज़ तरीके का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। आप लोगों को अगर यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को सिर्फ कितना 1 से 2 मरतबा ही आ पाते होंगे ना, कितने टाइम आते हो, 1 या 2 मरतबा ही होता है। लेकिन हमारा जो था ना, हम सुबह 10 बजे से निकलते थे घर से और रात को 10 बजे पहुँचते थे। हमारा दिन के 10 से 12 चक्कर होता था, आना जाना ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा मसला आता था। और यही जो आज कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ पर जो ना 8 बजे से हमारा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया था, तो सुबह 8 बजे से निकलना पड़ता था, फिर घर में 10 बजे पहुँचो। तो यहाँ पर जो स्ट्रगलिंग लाइफ जो है, हर एक को स्ट्रगल आता है, सिर्फ हमें नहीं, हर एक को आता है। आप दुनिया में किसी भी मतलब ऊँचे से ऊँचे इंसान को देखो, हर साथ कोई सफर करके यहाँ तक पहुँचा हुआ होता है। तो बोलने का मकसद ये है कि अगर आपके पास सपने हैं और उनमें आपको उड़ान भरनी है, उनमें जान, तो आप अपने सपनों को किसी ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको अपना सपना पूरा करना, आपको ही पूरा करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पहले जब हमें शुरू करो सफर तो पहले अकेले ही सफर करना पड़ता है, बाद में हमारे पीछे काफिला आता है। और अगर हमें अपना मतलब इंडिपेंडेंट होकर अपने माँ बाप को अपने पर प्राउड फील करवाना है और ऐसा कि भाई हम पूरा लड़कियाँ हैं तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, she is the first biggest independent woman and businesswoman in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam time. And second one is Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. She is the biggest, it is the muallim of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam time. And this innocent का birthday है सावित्री बाई फुले, तो वो भी क्या है, खातूनी थी ना। और हम भी मतलब पर्दे में रहकर कुछ ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते, पर्दे में रहकर हर वो चीज़ कर सकती है लड़कियाँ। बोला जाता है ना, समाज में बहुत बुरी बातों से देखा जाता है कि भाई लड़कियां हैं, चूल्हा चौका करेंगी, शादी हो जाएगी, एंड एक तो बहुत ढेर सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को हम गलत साबित कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। आपके पास जो भी सपने हैं, आपको जो भी ड्रीम है, आप उसे पूरा कीजिए। एंड इंशाल्लाह देखिए, हिम्मत मर्दा मरे तो आप हिम्मत करोगे, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आने वाला वक्त तो कुछ ना कुछ सुधार देंगे। तो आप अपना मतलब की जर्नी में आप अपनी जर्नी बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, अपने अकेडमिक के साथ साथ मैंने अपना प्रोफेशनल की प्रोफेशन स्टार्ट किया था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज जब मैं आपके सामने ऐसा लेक्चर दे पाऊँगी अपने टीचर से, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मैं सब ऐसे सुनते रहती थी कि हाँ भाई ऐसा वैसा, ये भी होता है वो भी होता है। लेकिन जब मैंने खुद स्टार्ट किया, आप सपने जो होते हो गए, लेकिन आपको मुश्किलें जो है आपको पूरा करने के लिए बहुत हज़ार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे घबराना नहीं है, मुश्किलों का डट कर सामना करना है। इनमें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि माँ बाप का भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिस्पेक्ट, टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे लिए माँ बाप इतना कर रहे हैं, टीचर्स इतना कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हमें भी उनको कुछ करके दिखाना है। जब वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं ना इतना। और उसके बाद फिर आप लोगों के पास अगर बहुत ढेर सारी ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी आती रहती है और हर एक की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते हैं, और वो टर्निंग पॉइंट को पहचानना होता है कि हाँ भाई हम यहाँ से अपना टर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और
बाद लास्ट में मैं ही आपसे कहूँगी कि अभी तो इस शानी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है चंद मिट्टी जमीन मैंने, इस परिंदे के लिए तो अभी पूरा आसमान बाकी है। मैंने लास्ट 3 माह से बीएससी पास किया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत 2021 से की। स्टूडेंट मैं आपके सामने सिर्फ करियर ऑप्शन की बात करने नहीं आई है, मैं यहाँ की बात करने आई हूँ पढ़ाई की, स्ट्रगल की, माँ बाप के भरोसे की और टीचर के गाइडेंस की। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकता हुआ सितारा पहले अंधेरे से गुजरता है। देखा पार्टी जब हम ये सोचते हैं तो सिर्फ ये ख्याल आता है कि ग्लैमर, स्टेज लाइफ और प्राइड है, सोशल मीडिया ये दिखता है, जो नहीं दिखता वो होती है मेहनत, सेल्फ डाउट और लर्निंग का सफर। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं क्रिएटिव फील्ड है तो पढ़ाई क्यों जरूरी है, और यही से टीचर का रोल शुरू होता है। टीचर सिर्फ हमें सिलेबस नहीं पढ़ाते, वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, टाइम की वैल्यू सिखाते हैं और स्ट्रगल के बीच कैसे फोकस रहना है वो सिखाते हैं और वो हमें डायरेक्शन देते हैं। मेकअप आर्टिस्ट तो सिर्फ ब्रश है और कलर का काम नहीं होता, इसमें साइंस भी होती है, हाइजीन भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है और यही से क्लासरूम डेवलप होती है। स्टूडेंट हमें लगता है कि टीचर बहुत बोरिंग बात करते हैं, हम उनकी बातें हमें बोरिंग लगती है, पर यकीन मानिए आज हमें बहुत डिसिप्लिन सिखा रहा है, वही कल रिग्रेट से बचा रहा होता है और यही पर टीचर की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। मार्क्स किसी पेपर पर आती है, स्टूडेंट को पढ़ाई को बर्डन मत समझो, इन्हें गाइड समझो। I sincerely thank our respected HOD, Rumana ma'am and faculty members, alumni base and all the students for making this program a great success. Thank you everyone. We have a wonderful day. Thank you. Today's program is especially designed to bridge a gap between academic learning and real-life career paths through the inspiring journeys of our own alumni. Alumni are the living examples of what the students can achieve beyond the classroom. They not only represent the success of the institution but also serve a guideline for current students. Today, we are fortunate to have two such accomplished alumni from our department who have served a unique career path for completing their BSc. I heartily welcome you all in today's program entitled From Campus to Career Alumni Guidance Session. For this program, we have a guest of honor, Ms. Muspera. Ms. Muspera, who completed her BSc in year 2022 and is currently working in a pathology laboratory, contributing directly to the healthcare sector. I invite Ms. Muspera to deliver a guest lecture where she will share her experience of working in a pathology laboratory and career scope in diagnostic science. Ma'am, please take over. बहुत मुश्किल रही है मेरी जर्नी, बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों की जैसे मैं एक स्टूडेंट्स थी, 2019 में 12th पास करके मैंने जर्नी स्टार्ट करी हूँ यहाँ पर। बीएससी में जब एडमिशन लेने के लिए आई तो मुझको नहीं लगा था कि मेरा एडमिशन यहाँ पर होगा। मेरी अम्मी बोलने लगी कि बेटा एडमिशन होगा नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें नाम नहीं आएगा तो लैब में जाना मेरा कोई गोल नहीं था, कभी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बहुत से लोग हैं, हर किसी को घिन आती है, रील सुनना, स्कूल सुनना, मुझको
और उसके बाद यहाँ पर भी एडमिशन हो जाना है। 2 जगह जाकर स्टडी करना और दोनों जगह मुझको पास आउट होना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। सुबह में 7 बजे वहाँ की कॉलेज जाना, वहाँ से 10 बजे आना, यहाँ 11 बजे फिर अटेंड करना कॉलेज, और यहाँ से 4 बजे जाकर प्लस में साथ में प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दी। जो मेरा PSC का फर्स्ट ईयर रहा है, यकीन जानिए मैं किस तरह कर रही हूँ। दिन भर घर में नहीं रहती, कंटिन्यू बाहर रहना, लैब से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से फिर लैब, उधर की कॉलेज, बस इतना ही मेरा सफर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो चीज़ मेरे लिए मतलब वो एक चैलेंज की तरह रहा है जो मुझको करना है, कंप्लीट करना है। मेरी मम्मी मुझको चैलेंज किए थे कि मुझको दोनों में पास होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों पास आउट की, BSc फर्स्ट ईयर भी और DMLT का भी। फिर उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में निकल गया, केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं हुआ, चांदौड़ से मैं जाकर केमिस्ट्री करी। वो भी सफर मेरा बहुत मुश्किल रहा। 8 बजे से उठना, फिर कॉलेज जाना, बस नहीं मिलती थी, खड़े होकर जाते थे, कभी मिल जाती थी सीट तो बैठ कर जाते थे। फिर वहाँ जाना, वहाँ से 5 बजे 6 बजे कभी 7 भी बज गए, और वहाँ से आकर मैं जॉब पर जाती थी। अभी तक मैं प्रैक्टिस करती, उसके बाद मैं जॉब पे लगी, जॉब पे जाना। वहाँ से जब जॉब पे जाती थी, वहाँ पे जो सर थे मेरे, पहले मैं फातिमा में प्रैक्टिस करती थी, अभी अल-अज़ीज़ में जॉब करूँ, वहाँ सर मुझको डांटते थे कि लेट आती है। अब क्या कर सकती हूँ, वहाँ बस नहीं मिलती थी मुझको, लेकिन मैं करी, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन थी करने की, मुझको करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरी अम्मी सिंगल मदर है, अब वो मेरे लिए बचपन से लेकर अभी तक की मेहनत करते आई है। एक रुपया जोड़कर मुझको आज यहाँ इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैर पर खुद खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेरा घर खुद चला रही हूँ, मेरे दम से चला रही हूँ। आज मैं मेरी अम्मी को बोलती हूँ कि अम्मी तू कुछ मत कर, अब मैं करके तुझको खिलाऊंगी। और इस सफर में सिर्फ मेरी अम्मी मेरे गाइडेंस नहीं रहे, मेरे टीचर्स भी रहे। जब मैं मेरे में जाती थी, मुझको वहाँ कुछ नहीं समझता था, आती थी स्माइल सर से पूछने के लिए, सर मुझको ये चीज़ बताइए, मुझको वो समझाइए, मुझे ये नहीं समझ, वो बताते थे। तो कहीं जो शुरुआत होती है वो हो जाती है, सपना देख लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ लगन करनी पड़ती है, ऐसा ही नहीं मिल जाता है। जब तक कि मेहनत नहीं करो तब तक कुछ नहीं मिलता। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि सपना देखो और उसको पूरा करो। तो सपना जो है ना, खुली आंखों से देखना चाहिए, बंद आंखों के सपने पूरे नहीं होते। आंखों से खुलकर देखो अपने सपने को कि क्या अपने को करना है। बहुत से लोग मुझसे घिनाते तो बोलते छी तू यूरिन टेस्ट करती है, छी तू स्कूल आज मुझको उसमें इंटरेस्ट आता है। लोग स्कूल को लेकर घिनाते, हम लोग स्कूल का ऐसे उठा कर देखते हैं, अच्छा लगता है देखना, लोग घिन करते हैं। क्योंकि अब वो मेरे लिए सपना, मेरा उसके अंदर इतना इंटरेस्ट आ गया है, इतना ज़्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मुझको वो चीज़ें पसंद आती है। अब लोग ये सुन के बोलेंगे छी स्कूल और यूरिन पसंद आना, उसको जो करते हैं टेस्ट वो पसंद आता है, वो किसी को भी पसंद आए। तो कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि नहीं बाबा मैं टीचर ही बनूंगी, ये बड़ी फील्ड है, मैं डॉक्टर बनूंगी, ये बड़ी फील्ड है, ब्लड टेक्नीशियन क्या होता है, इन लोग का सुनकर बोलेंगे मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी सी जॉब भी बहुत दूर तक के लेके जाती है। आज मैं मेरे नाम से जानी जाती है, कल लोग मेरी अम्मी को बोलते थे ये तेरी बेटी है, आज मेरी अम्मी को लोग बोलते हैं तो इसकी अम्मी है, मेरे नाम से मेरी अम्मी को पहचान, हर जगह मेरा नाम चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रही तो बहुत जल्द मैं अपनी लैब की भी शुरुआत करूँगी। आप बस दुआएं कीजिए और टीचर से भी दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करना। लोग कहते हैं कि शादी हो जाती है तो उनका करियर रुक जाता है, शादी कर मत करना, पहले पढ़ाई कंप्लीट करना, ऐसा नहीं है। 2 मंथ तो हुआ है मेरी शादी को, लेकिन मेरा करियर नहीं होता। मेरी ससुराल वाले मुझको गाइड करते हैं कि बेटा तुझको अगर पढ़ना है तो तू पढ़, जिसके अंदर करने की लगन होती है ना तो वहाँ का किसी को नहीं मिलता, ना ससुराल वाले, ना मायके वाले, ना कोई और, ना पैसा बीच में आता है, खुद का खुद रास्ता मिलता है। MSc में सबका 20,000 का एडमिशन हुआ, मेरे सब फ्रेंड्स का, मेरा 2,000 में एडमिशन हुआ। सिर्फ ओनली मैं एक वादिक स्टूडेंट हूँ वहाँ की, मेरे बैच की, जिसका 2,000 में एडमिशन हुआ है।
रुपया मुझको नहीं लगा, सिर्फ एग्जाम की फीस। पूरी स्कॉलरशिप मेरी आ जाती है, मेरे उस पर हो जाती है। तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, सपना देखो, सपने पूरे करो। आज मेरे ससुराल में मुझको बोल रही उसको बीएड करना है, बीएड कर, उसको लैब में हम लोग खोल देते हैं। तो अपनी चीज़ों को देखो, सपने को पूरा करो और उसको कंप्लीट करो। और कहीं पर ये सोच के मत घूमना कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर पाएंगे, ससुराल वाले कर पाएंगे या मैं कुछ कर पाऊंगी। आपके अंदर लगन रहेगी, सब हो जाएगा। अपनी बात यही खत्म करती हूँ। Thank you, ma'am, for sharing such a valuable practical insights with our students. With this, we come to the end of today's Alumni Interaction Program. On behalf of Alumni Association, Department of Zoology, and the entire organizing team, I sincerely thank our respected principal, faculty members, alumni guests, and all the students for making this program a great success. Thank you, everyone, and have a wonderful day.